So this law is very, very essential. Okay, this law is very, very essential from exam point of view and even for problem point of view. So please write down and study this. We will do an application on this later on. Okay. Sir, are you continuing with magnetic induction? Yeah, because no use of studying the chapter. Okay. First we'll study this, then we'll go to that. It's linked chapter, no? Okay. So we will study about what is magnetic fields. Okay. Magnetic field lines are closed curve. Write down. They are closed curve. They are not like, they are like this, will end, start and end. No. If they started, then they have to end. They are closed curves. So if you take a bar magnet, no, this is North Pole, this is South Pole. The magnetic field lines outside will go like this, but inside it will be like this. बाहर की तरफ it will go from north to south. अंदर की तरफ it will go from south to north. They are closed curves. Unlike what? Unlike electrostatics, when you study, will understand. If you take a dipole, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है. डाइपोल में क्लोज नहीं होता है, ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, if it's a closed curve, then if you draw a tangent, the tangent at each point gives the direction of magnetic field. At this point, the direction is like this. At this point, the direction is like this. At this point, the direction is like this. Is it clear? Yes, sir. Third point, they do not intersect each other. No magnetic field will ever intersect each other. Why? So let's say this point, they intersect. So at this point, if you draw a tangent, let's say it is like this and it is like this. So at this point, the tangent is like this. At this point, the tangent is like this. Can you tell me if one point will have different direction? No. At one point, you can have a one direction. You cannot have two direction, right? So they will never intersect. Magnetic lines never ever intersect each other. Clear? Yes, sir. Clear? More the magnetic field crowded, more strong the magnet is. मतलब अगर ऐसा है और ऐसा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मैग्नेट जो बोलते हैं ना, जो that strength is higher. The field strength, magnetic field strength is higher. Strength is higher. ज्यादा crowded है तो ज्यादा है, कम crowded है तो कम है. Clear? Yes, sir. Next point. In any region, if field lines are equidistant and straight, the field is uniform, otherwise not. मतलब अगर मैंने एक सिस्टम लिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है और एक सिस्टम लिया जहां पर ऐसा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है. यहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इधर डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है. इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस. बराबर? Yes, sir. And here both the okay, I will redraw like this, you will understand better.
ठीक है, ये जो बॉक्स है ना ए बी सी इतना वाला, ये है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और ये है यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब तुम अगर देखोगे इधर डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन क्या फील्ड कांस्टेंट है? नो। यहाँ पर देखो फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है, यहाँ पर, तो ये क्या है? ओनली डायरेक्शन कांस्टेंट। इधर इधर क्या है? डायरेक्शन इज, दोनों भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट नहीं है। इधर फील्ड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इधर फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट इक्वल स्पेसिंग, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। इधर दोनों चेंज, ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है ना ही फील्ड कांस्टेंट, बट इधर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, फील्ड भी कांस्टेंट है। राइट डाउन दिस। क्लियर? क्लियर और नॉट? ऋषभ, yes sir, clear. next. Write down next. Magnetic field lines enter from one end of the surface at any angle. मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई भी एंगल में। ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर में ही होगा, ऐसे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। It can enter the surface at any angle clear? Yes. So next we'll go to right hand thumb rule. Very, very important. Right hand thumb rule. What does it say? अगर मेरा थंब ऐसा है, राइट हैंड ना, सॉरी, ऐसा, अगर मेरा करंट, मेरे पास एक पेपर है, मेरे पास एक पेपर है, क्लियर? ठीक है, और यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसपे करंट दौड़ रहा है, ऊपर, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कौन से डायरेक्शन में? अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने फिंगर को, अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखो और कर्ल करो। अगर कर्ल करोगे तुम्हारा फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगा, बराबर? कैन यू डू कर्लिंग? मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी तेरा क्लास में हूँ, मेरे को 10 मिनट दो, मैं आता हूँ। नहीं, मैं क्लास में हूँ यार, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, 10 मिनट, ठीक है? ठीक है, आप कर्ल करो अपने फिंगर को। इफ यू कर्ल योर फिंगर, यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes sir. अब मुझे बताओ, अगर करंट कैरिंग वायर उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ये डायरेक्शन में हो जाएगा, Clockwise. उल्टा, उल्टा। Clockwise ना? यस, इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से कुछ नहीं, तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करो। इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो तुम्हारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो। क्लियर? क्लियर? अगर मैं ऐसा दिखाया, अगर मैं इसको ऐसा देखूं, कैसे? पेपर को मैं तुम्हारी तरफ रख रहा हूं, ठीक है, तुम्हारी तरफ रख रहा हूं। हम बोलते हैं कि अगर डॉट है, डॉट मतलब क्या है? तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? पेपर के बाहर आ रहा है, ठीक है?
तो तुम्हारा ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे, ACW। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्रॉस, मतलब तुम्हारे से अंदर की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन, देन इट विल बी क्लॉकवाइज। इसको उल्टा करोगे, अगर ऐसा देखोगे तो मैंने अभी जो बताया ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा। द सेम थिंग, मैं उसको खाली ऐसा तुम्हारी तरफ करके दिखा रहा हूं पेपर। क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? ऋषभ क्लियर? सर क्रॉस मतलब आउटवर्ड ना? नहीं, क्रॉस मतलब इनवर्ड। मतलब अगर तुम स्क्रू को देखोगे, स्क्रू कैसा रहता है, स्क्रू में ऐसा रहता है ना, और ये स्क्रू ऐसा रहता है, पॉइंटेड रहता है ना। समझ गया। तो स्क्रू जब अंदर जाएगा तो तुम्हारी तरफ क्या फेस करेगा, ये वाला फेस करेगा ना। और राइट समझ गया। स्क्रू अगर बाहर आएगा तो पॉइंटेड पिक करेगा। तो डॉट है तो आउटसाइड द फ्रॉम इनटू, मतलब बाहर, अंदर से बाहर आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ कोई भाला फेंकेगा, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, उसका पॉइंटेड, जैवेलिन कोई फेंकता है कैसा दिखता है, उसकी तरफ पॉइंटेड पिक दिखता है, ठीक है ना। अगर तुम कुछ छोड़ोगे, फेंकोगे, तो तुम्हारी तरफ, तुमसे बाहर अंदर जाएगा, तो इट विल लाइक ए क्रॉस। उसको ऐसा लिखते हैं, डॉट डॉट और क्रॉस। अगर कोई प्रॉब्लम देगा कि फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस, इसका मतलब क्या है कि फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रहा है। अगर कोई बोलेगा फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस, तो मतलब फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर? क्लियर? तो कल के क्लास में, कल के क्लास में और हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सो बी अवेलेबल, डोंट बी लेट, प्लीज ज्वाइन अर्ली, ठीक है। यस सर। चलो, सी यू एट 8 टुमारो। बाय सर। ना